Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 13th November 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health, following all the COVID protocols, following all the safety precautions and taking very good care of yourselves. Do take very, excuse me children, do take very good care of yourselves and stay happy, healthy and safe children. As you all know, we are continuing with poem number 4, that is Where is the Caterpillar? It is a very small and sweet poem. We have done the recitation part. ये poem मैंने एक बार recitation करा दिया है, इसका मैंने meaning explain कर दिया है. We have written the spell-well words and we have written the word meanings. In your book only one word meaning is there, but I have given you 2 more. So I hope you have done those word meanings. ठीक है, आपने वो किया होगा, वो कर लिया होगा. और स्पेल वेल वर्ड्स भी जो मैंने लिखवाए हैं वो नोटबुक वर्क था. स्पेल वेल वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग वो आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. वेरी फ्यू एक्सरसाइजेस आर देयर, ओनली कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस हैं इसमें. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन दैट इज टू चेक योर रीडिंग पार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. आई विल जस्ट रीड द पोएम वंस एंड एक बार उसका मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, द पोएम गोज लाइक, वेयर इज द कैटरपिलर हाइडिंग टुडे? आई लुक्ड अंडर द टेबल, आई लुक्ड ऑन द चेयर, आई लुक्ड आउट द विंडो, but he was not there. Where is the caterpillar hiding today? I looked in the fish bowl, I looked in the sink, I looked on the tree, I looked around the flowers. What did I see? A beautiful butterfly looking at me. The child is saying कि आज caterpillar पता नहीं कहाँ छुप रहा है. So that means the child was seeing that caterpillar every day, but उस दिन, उस particular दिन जिस दिन ये पोएम नरेट किया है, वो कैटरपिलर को कहीं नहीं देख पा रहा था. ठीक है, तो उसने पूछा कि कहाँ छिप रहा है आज. मैंने टेबल के नीचे देखा, मैंने चेयर के ऊपर देखा, मैंने विंडो के बाहर देखा, लेकिन मुझे कैटरपिलर कहीं भी नहीं दिखाई पड़ा. ठीक है, फिर मैंने उसको फिश बाउल में देखा, उसको मैंने सिंक में देखा, उसको मैंने ट्री पे देखा, फिर मैंने फ्लावर्स के चारों तरफ देखा. और जब फ्लावर्स के चारों तरफ देखा मैंने, तो क्या देखा? एक सुंदर सी बटरफ्लाई मुझे देख रही थी. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द कैटरपिलर हैड ग्रोन इनटू अ बटरफ्लाई. एंड इन रियलिटी ऑल्सो, रियल में भी, सच में भी कैटरपिलर जो होते हैं वो बटरफ्लाई में ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, मतलब कैटरपिलर होते हैं एंड देन दे ग्रो इनटू अ बटरफ्लाई. जो you can say butterfly का जो baby है, that is caterpillar. Okay, so we have done spell well words and we have done 3 word meanings. Sink is already there, मैंने एक fish bowl लिखवाया था and one around. ठीक है, now turn to page number 65. आज हम बुक का भी वर्क करेंगे और नोटबुक का भी वर्क करेंगे. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज जो है A, that we will do in the book itself. उसको हम बुक में करेंगे एंड देन आई विल गिव यू 4 मेक सेंटेंसेस. पोएम का मैं मेक सेंटेंसेस नहीं करवाती हूँ, बट इससे बहुत इजी वर्ड है, इसीलिए मैं करवा रही हूँ. सो दैट वी विल डू इन द नोटबुक. ओके, सो टेक आउट योर इंग्लिश बुक एंड टर्न टू पेज नंबर 65. 65. ओके, A is, this is COMPREHENSION, comprehension. ठीक है, A is ANSWER, answer the QUESTIONS, questions in YES, yes or no. That means you have to answer the questions in just one word. सिर्फ एक वर्ड में आंसर करना है, या yes लिखना है या no लिखना है. Okay, so first I will write all the 4 questions. First is, was the caterpillar
HIDING, hiding under the table. Second is was the caterpillar hiding in the fish bowl. Third is was the caterpillar hiding on the window. And fourth is did the caterpillar change into the butterfly? These are the 4 questions. Okay, ये 4 questions है. You have to write the answer in yes or no. So first question is, was the caterpillar hiding under the table? क्या caterpillar table के नीचे छिपा था? The answer is yes or no. The answer is no. The caterpillar was not hiding there. So the answer is no. ठीक है, this you have to do in your book only. Was the caterpillar hiding in the fish bowl? क्या caterpillar fish bowl के अंदर छिपा था? Again the answer is no. The caterpillar was not hiding there. So no. Was the caterpillar hiding on the window? क्या caterpillar window पे छिपा हुआ था? Again the answer is, क्या होगा आंसर? Answer is no. वहां भी नहीं था caterpillar. The child could not see the caterpillar because caterpillar was not there anymore. उस बॉय को कैटरपिलर क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि कैटरपिलर तो था ही नहीं. कैटरपिलर जो है इट हैड ग्रोन इनटू अ बटरफ्लाई. कैटरपिलर जो था वो बटरफ्लाई बन चुका था. सो दैट इज व्हाई द चाइल्ड वाज नॉट एबल टू सी हिम. डिड द कैटरपिलर चेंज इनटू द बटरफ्लाई? क्या कैटरपिलर बटरफ्लाई में चेंज हो गया था? द आंसर इज यस. द कैटरपिलर हैड चेंज इनटू अ बटरफ्लाई. सो द आंसर इज YES. yes. So you just have to write no and yes. First, second and third का answer है no. Fourth का answer है yes. Okay. Write this and after this take out your English notebook also. 4 make frame sentences कराऊंगी. Very small sentences. Very easy words are there. तो इसलिए मैं frame sentences करा रही हूँ. So take out your English notebook now. So I hope you have done this. सबका ये work हो गया है. अभी इसको मैं इरेज कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू राइट फ्रेम सेंटेंसेस नाउ. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर भी नो है, सेकेंड का आंसर नो है एंड थर्ड का आंसर नो है. फोर्थ का आंसर क्या है? यस. ओके, तो ये मैं इरेज कर रही हूँ अब. नाउ द फोर्थ नोटबुक वर्क इज फ्रेम सेंटेंसेस. FRAME, frame, SENTENCES, and this is your notebook work. Now first word is tree. ट्री. मैंने ऐसे उसमें वर्ड्स लिए हैं जिससे कि आप खुद भी अपने आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो. ठीक है, ट्री वर्ड आई थिंक वी हैव डन अर्लियर ऑल्सो एंड इवन इफ यू हैव नॉट डन ट्रीज पे वी हैव रिटन कॉम्पोजिशन, सो यू कैन राइट sentences on your own also.
Trees are our green friends, trees are our best friends, trees give us oxygen, trees give us food, trees give us medicines, trees give us many things. ठीक है ना. सिंगुलर है, सिंगुलर को हम प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि ट्री है तो हमें ट्री ही यूज करना है. द वर्ड रिमेन्स द सेम, द ओनली थिंग इज सिंगुलर और प्लूरल. तो वी कैन यूज इट इन प्लूरल फॉर्म ऑल्सो. तो सेंटेंस हम क्या लिखते हैं, मैं लिखने जा रही हूँ ट्रीज आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स. ठीक है. Trees, TREES, trees are our GREEN, green friend. ट्रीज क्या है, ट्रीज हमारे ग्रीन फ्रेंड है. ग्रीन फ्रेंड क्यों, बिकॉज ट्रीज आर ग्रीन. ठीक है. ट्रीज जहाँ होते हैं इट लुक्स सो ग्रीन, ग्रीनरी दिखाई पड़ती है. ठीक है. एंड जिस वर्ड से हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं वी अंडरलाइन दैट वर्ड. So trees are our green friend. Okay. You can write any sentence on your own also, but try to frame a very small sentence, very simple and very easy, जहाँ पे आप कम से कम मिस्टेक करो. Okay. Second word is flowers. Second word is flowers. Third word is butterfly. Butterfly. And fourth word is beautiful. BEAUTIFUL. ठीक है. अभी फ्लावर्स, अगेन फ्लावर्स से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो. रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर. लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर. देर आर कलरफुल फ्लावर्स इन द पार्क. देर आर मेनी फ्लावर्स इन माई गार्डन. फ्लावर्स गिव अस अ स्वीट स्मेल. ठीक है. बहुत सारे हम फ्लावर्स आर यूज इन मेकिंग गार्लैंड. ठीक है. फ्लावर्स आर यूज फॉर डेकोरेशन. तो बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं. सिंपल से एकदम सेंटेंस बनाओगे आप लिख सकते हो रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर, जहाँ कम से कम सेंटेंसेस हो. देर आर मेनी कलरफुल फ्लावर्स इन द गार्डन. देर आर मेनी फ्लावर्स इन माई गार्डन. ठीक है. तो सिंपल से एक सेंटेंस बनाते हैं. रोज is a BEAUTIFUL, beautiful flower. Now see children, we have to make a sentence with beautiful also. ठीक है ना. तो अगर ये सेंटेंस लिखा है रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, तो यू कैन फ्रेम दिस सेंटेंस फॉर फ्लावर एज वेल एज फॉर ब्यूटिफुल ऑल्सो. रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, अगर फ्लावर से बनाना है तो फ्लावर को अंडरलाइन किया. और इफ यू हैव टू यूज दिस वर्ड ब्यूटिफुल यू कैन ऑल्सो राइट रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर. ठीक है. बट ऑफकोर्स यहाँ पे हम वी विल फ्रेम अनदर सेंटेंस. सो रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर. देन बटरफ्लाई. ठीक है. बटरफ्लाई, बटरफ्लाईज नॉर्मली कैसे होती हैं, बटरफ्लाईज आर ब्यूटिफुल इंसेक्ट आप लिख सकते हो. अगेन देखो बटरफ्लाईज आर ब्यूटिफुल इंसेक्ट, तो हम बटरफ्लाई से भी सेंटेंस बन गया, ब्यूटिफुल से भी बन गया. ठीक है. बटरफ्लाईज आर वेरी कलरफुल. Butterflies have colorful wings. Butterflies have beautiful wings. So again, butterfly and butterflies, we can change the number. ज़रूरी नहीं है कि बटरफ्लाई है तो हम बटरफ्लाई बनाए. हम सिंगल की जगह प्लूरल फॉर्म यूज कर सकते हैं. प्लूरल की जगह वी कैन यूज सिंगुलर फॉर्म. इन प्लेस ऑफ सिंगुलर फॉर्म वी कैन यूज प्लूरल फॉर्म्स. ठीक है. तो बटरफ्लाईज हमें बताना है. बटरफ्लाईज हैव कलरफुल विंग्स, ये लिखते हैं. तो BUTTERFLIES, यहाँ पे हमने बटरफ्लाई का पास्ट प्लूरल फॉर्म यूज किया है. तो प्लूरल फॉर्म में मैंने बताया था कि जिस सेंटेंस में लास्ट में वाई आता है एंड वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है देन वाई इज चेंज इनटू IES जब हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं. तो बटरफ्लाईज हैव colorful wings. Also we can write butterflies have colorful wings. ठीक है. butterflies have colorful WINGS wings. ठीक है. and fourth is beautiful. Again you can write rose is a beautiful flower, but we will not repeat the sentence. So there are beautiful flowers in the park. ठीक है. in the garden there are beautiful flowers
in the garden. ठीक है, अभी देखो ये सेंटेंस भी अगेन ब्यूटीफुल वर्ड इज ऑल्सो देयर, फ्लावर वर्ड इज ऑल्सो देयर. तो आप अगेन इस सेंटेंस को आप फ्लावर वर्ड के लिए भी यूज कर सकते हो और ब्यूटीफुल वर्ड के लिए भी यूज कर सकते हो. ओके, सो ओनली 4 मेक सेंटेंसेस आर देयर एंड यू हैव टू राइट दीज इन योर इंग्लिश नोटबुक. सारे बच्चे ये जो मेक सेंटेंसेस है इसे आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखोगे. ओके चिल्ड्रन, exercise in comprehension exercise B and C we will do in the next class. Okay, so that is all for the day children. Thank you and have a good day.